ہونا عجب نہیں ہے محبت میں درد کا ہونا، گلاب سنگ جو کاٹے ہیں چند کیا کرتے، یہ تھے یوسف دیوان صاحب۔ آئیے اب میں ہمارے آج کے صاحب اعزاز مہمان شاعر کونا مشق شاعر الجناب عبدالرحیم ارمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام حاضرین محفل کے روبرو پیش کرے کہ تم آ گئے ہو، کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز ہوتا ہے۔ علی جناب عبدالرحیم ارمان صاحب زوردار تعلیم میں استقبال کیجیے گا۔ اصل میں غزل کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں اس کا وجود ہی باعث تبریک ہے، اصل میں اس کا وجود ہی باعث تبریک ہے، ہر مصیبت میں جو ہر انسان کے نزدیک ہے، ہر مصیبت میں جو ہر انسان کے نزدیک ہے۔ اور شعر ہے کہ ایک دن تائید میں تبدیل وہ ہو جائے گی، ایک دن تائید میں تبدیل وہ ہو جائے گی، اپنی جو تردید میں اب ہر طرف تحریک ہے، اپنی جو تردید میں اب ہر طرف تحریک ہے۔ اور شعر کے کہنے کو مرد جری ہے یہ مگر اس کا مزاج، کہنے کو مرد جری ہے یہ مگر اس کا مزاج، پھول سے نازک بھی ہے اور بات سے باریک ہے۔ کہنے کو مرد جری ہے یہ مگر اس کا مزاج، پھول سے نازک بھی ہے اور بال سے باریک ہے۔ اور شعر کے بدگماں وہ سب ہی سے ہے، بدگماں وہ سبھی ہی سے ہے، اس لیے بدگماں وہ سبھی ہی سے ہے ان دنوں اس کے لیے، بدگماں وہ سبھی ہی سے ہے ان دنوں اس کے لیے، خیر اندیشوں کا بھی حرف دل بری تضحیک ہے، خیر اندیشوں کا بھی حرف دل بری تضحیک ہے۔ اور شعر ہے کہ دو عقیدوں میں ہے اب یہ اہل دنیا منقسم، دو عقیدوں میں ہیں اب یہ اہل دنیا منقسم، ایک ہے توحید خالص دوسرا تشریک ہے، دو عقیدوں میں ہے اب یہ اہل دنیا منقسم، ایک ہے توحید خالص دوسرا تشریک ہے۔ اور شعر ہے کہ دنیا میں پھیلا ہے جہاں سے نور ہدایت 400، دنیا میں پھیلا ہے جہاں سے نور ہدایت 400، سبھی اس کو کہتے تھے یہ وادی تاریک ہے، سبھی اس کو کہتے تھے یہ وادی تاریک ہے۔ اور چشم بینا کے لیے عین الیقین ارماں ہے جو، چشم بینا کے لیے عین الیقین ارماں ہے جو، اور چشموں کے لیے وہ باعث تحقیق ہے، چشم بینا کے لیے عین الیقین ارماں ہے جو، اور چشموں کے لیے وہ باعث تحقیق ہے۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ بیاں کیا حال ہو دارالعما کی ریت کا، بیاں کیا حال ہو دارالعما کی ریت کا، جسے ہے سامنا روز آفات اور اذیت کا، جسے ہے سامنا روز آفات اور اذیت کا، نہ آزما ستم اتنا بزور شیزوری، نہ آزما ستم اتنا بزور شیزوری، نہ امتحان لے کمزوروں کی حمیت کا، نہ امتحان لے کمزوروں کی حمیت کا۔ اور بنے ہوئے ہیں بظاہر جو خیر خواہ انام، بنے ہوئے ہیں بظاہر جو خیر خواہ انام، خدا ہی جانے ہے کیا حال ان کی نیت کا، خدا ہی جانے ہے کیا حال ان کی نیت کا۔ اور شعر ہے
जो इख्तिलाफ का उर्सा में बन गया था सबब, जो इख्तिलाफ का उर्सा में बन गया था सबब, जुमानी लफ्जों में इजहार था वसीयत का, जुमानी लफ्जों में इजहार था वसीयत का। और हमारे दिल के इरादे जो होते हैं उनसे, हमारे दिल के इरादे जो होते हैं उनसे अलग ही फैसला क्यों होता है मकीयत का, अलग ही फैसला क्यों होता है मकीयत का। और मक्ते का शेर अर्ज़ क्या है, मुखालिफों में घिरे हों या गैरों में अरमां, मुखालिफों में घिरे हों या गैरों में अरमां, ख्याल आता नहीं उनसे अजनबियत का। शुक्रिया। ये थे अली जनाब अब्दुल रहीम अरमान साहब। में ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए हमारे आज के आखिरी दो शायर बचे हुए हैं, उसमें जो है तो अली जनाब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इफ्तिकार अफजल साहब को इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि उम्र भर फसले इश्क बोई है, उम्र भर फसले इश्क बोई है, यूं नहीं दिल की सुर्ख रोई है, और उनके होठों से फूल झड़ते हैं, उनकी फितरत शगुफ्तगोई है। अली जनाब इफ्तिकार अफजल साहब, तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब सदर की इजाज़त से कि अव्वल तो काफ़ी ताख़ीर हो गई है और हमारे नौजवान शोरा ने खामगांव साहब ने, मुस्तफ़ा खैरी साहब ने, और ये नौजवान शोरा ने इतनी अच्छी गज़लें, इतने अच्छे अशार सुनाए बच्ची ने भी कि एक मिसरे में कभी बात कहाँ बनती है और तुम हो कि मेरा शेर संभाला नहीं जाता। क्या अच्छे अच्छे अशार सुनाए हैं, गज़लें अच्छी, नज़लें अच्छी सुनाई। उसके बाद हम लोगों को सुन के आपको कुछ मज़ा वज़ा तो आएगा, फिर भी तो चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, सवाल फरमाएं। अभी अशार भी सुने भी। एक शेर है कि छू न लेना कहीं रवानी में, छू न लेना कहीं रवानी में, अक्स ठहरा हुआ है पानी, अक्स ठहरा हुआ है पानी में। और इसका एक शूक शेर है कि लहलहा जाएंगे बदन के गुलाब, लहलहा जाएंगे बदन के गुलाब, वो है मशाक पाक पानी में। और एक शेर सुनिए कि दो अशार कि जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा, जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा, अभी है नारसा नायाब होगा। जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा, अभी है नारसा नायाब होगा। तू पानी है करम करता चला जा, तू पानी है करम करता चला जा, जिसे होना है खुद सैराब होगा। तू पानी है करम करता चला जा, जिसे होना है खुद सैराब होगा। और एक गज़ल के चंद अशार कि रात होती है तो एक ख्वाब नया खुलता है, रात होती है तो एक ख्वाब नया खुलता है, गोया हर तरह से महताब नया खुलता है। रात होती है तो एक ख्वाब नया खुलता है, गोया हर तरह से महताब नया खुलता है। दीदाए तर के तसद्दुक के हमारे हक में, दीदाए तर के तसद्दुक के हमारे हक में, हर घड़ी हल्क़े अहबाब नया खुलता है। दीदाए तर के तसद्दुक के हमारे हक में, हर घड़ी हल्क़े अहबाब नया खुलता है। शेर सुनिए, गजल का शेर है, नाजुक है कि चांद पहलू से तुलू हो तो दिखाएं हम भी, चांद पहलू से तुलू हो तो दिखाएं हम भी, किस तरह गौहर नायाब नया खुलता है। चांद पहलू से तुलू हो तो दिखाएं हम भी, किस तरह गौहर नायाब नया खुलता है। एक मुख्तसर सी नज़्म सुना दूं आपको।
आधा मुशायरा अजानों की नजर हो गया। अल्लाह का करम है। जी बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन नमाजियों और मुत्तक़ीन के तुफ़ैल हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे। अज़ान तो बहुत अच्छा लगा है, बच्चे जो इतना अच्छा सुना रहे हैं, नौजवान बच्चे। क्या नाम है आपका? खामगांव से जो है, मुझे नाम या आजकल हाफिज राहिल, क्या अच्छे से सुना आपने। पानी जम जाए तो दीवार भी हो सकता, क्या अच्छा मिसाल है बाबा, बहुत अच्छे। राहिल बहुत अच्छे मिसाल सुना। हमारे जो औरंगाबाद के जो नौजवान है वो तो अब वो इस फन में दाख हो गए हैं। पढ़ते भी बहुत अच्छा है, अशार भी बहुत खूब सुना रहे हैं। और मुझे यकीन है यूसुफ भाई को भी बहुत पसंद आया होगा कि यूसुफ दीवान साहब सुखनवार इंसान हैं और उनकी निज़ामत तो जाने दीजिए, वो तो खैर उसमें माहिर नहीं है, लेकिन ज़बान की नज़ाकतों से जो और उसके रुमूज़ और अल्ताफ़ से जो वाकिफ़ हैं वो अपना एक खूबी है उनके ख़ास। ठीक है, एक नज़्म है, ये यूँ है कि क्या करें अपनी तबीयत वहशत आमादा बहुत है। क्या करें अपनी तबीयत वहशत आमादा बहुत है और उस पर ये सितम, फसल गुल भी अब्रो बारा भी, लम्हा लम्हा रंग बदलते मौसमों की जलवा सामानी बकसरत दिल फरेब। क्या करें अपनी तबीयत वहशत आमादा बहुत है और उस पर ये सितम, फसल गुल भी अब्रो बारा भी, लम्हा लम्हा रंग बदलते मौसमों की जलवा सामानी बकसरत दिल फरेब। कोई जंगल हो कोई सहरा के वीराना, दिल के बहलाने का कुछ सामा तो हो। कोई जंगल हो कोई सहरा के वीराना, दिल के बहलाने का कुछ सामा तो हो। क्यों भला इन बस्तियों में आ गए हम, क्यों भला इन बस्तियों में आ गए हम, मौसम वहशत से क्यों दामन छुड़ाया, मौसम वहशत से क्यों दामन छुड़ाया। चिलवनों की ओट से महताब रूह, क्यों हमारे वास्ते शर्माए, चिलवनों की ओट से महताब रूह, क्यों हमारे वास्ते शर्माएंगे। क्यों पजीराई की खातिर दामने गुलनार कोई राह में लहराएगा, क्यों पजीराई की खातिर दामने गुलनार कोई राह में लहराएगा। मिसाल देखिए कि क्यों झरोका कोई आहिस्ता खुलेगा और खुला रह जाएगा, क्यों झरोका कोई आहिस्ता खुलेगा और खुला रह जाएगा। क्या करें फिर उसी सहरा में वापस लौट जाएं, पापी आधा आग लाभा तिश्न लब, फिर गुबारे नाक़ो महमद में खो जाएं। क्या करें अपनी तबीयत वहशत आमादा। बहुत शुक्रिया उस्ताद। अब इस गज़ल का आखिरी मक्ते का आखिरी मिसरा इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। सफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले, जिक्र गुल चले।
बहुत हुआ। नाम लो उस्तादुल असातिज़ा एडवोकेट वासिफ नाफिद मौर्रिख साहित्य एकेडमी अवार्डी और जितने भी असनाफ सुकन में गिनाते बैठे तो फिर आप साफ साफ में भाग जाएंगे, वही गजल हो जाएंगे। अली जनाब असलम मिर्जा साहब, इससे गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। बड़ी अच्छी महफिल रही आज महफिल मुशायरा में, और शुरू से आखिर तक आप बैठे रहे। जैसा कि डॉक्टर इफ्तिखार अफजल साहब फरमा रहे थे, नौजवानों ने बड़े अच्छा कलाम पेश किया, और सभी ख़वातीन ने भी और नौजवान लड़कों ने। अब ये है कि आप काफ़ी बोर हो चुके हैं और इख्तिताम मुझे करना है। अजान का जिक्र कर रहे थे इफ्तिखार साहब कि एक शेर है मेरा, सोए हुओं को ज्ञान दे रहा हूँ, सोए हुओं को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं सुबह की अजान दे रहा हूँ। सोए हुओं को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं सुबह की अजान दे रहा हूँ। और कुछ और अशार जो है एक मतलब एक शेर कि दर्द का दिन चैन से कटता नहीं, दर्द का दिन चैन से कटता नहीं, बेहिसी का नाग भी डसता नहीं। दर्द का दिन चैन से कटता नहीं, बेहिसी का नाग भी डसता नहीं, और जाने उस पर कौन सा कर्ज है मेरा। रहमान साहब, जाने उस पर कौन सा कर्ज है मेरा, शहर में रहकर भी वो मिलता नहीं। जाने उस पर कौन सा कर्ज है मेरा, शहर में रहकर भी वो मिलता नहीं। और देश में दो शेर और मुलाहिजा फरमाएं कि पहले यूं हुआ कि शहर भर में दर बदर गया। पहले यूं हुआ कि शहर भर में दर बदर गया, फिर तेरी तलाश में ख्याल चांद पर गया। पहले यूं हुआ कि शहर भर में दर बदर गया, फिर तेरी तलाश में ख्याल चांद पर गया। और दोस्तों की हमरही का बोझ क्यों लिए फिरे, दोस्तों की हमरही का बोझ क्यों लिए फिरे, थक चले थे रास्ते तमाम मैं भी घर गया। दोस्तों की हमरही का बोझ क्यों लिए फिरे, थक चले थे रास्ते तमाम मैं भी घर गया। और एक शेर और सुना करके अभी जाऊंगा घर, तो इसीलिए वो शेर याद आया कि लबों पर था सितारा बन गया है, लबों पर था सितारा बन गया है, तबस्सुम इस्तिआरा बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर महफिल ये थे सदर महफिल अली जनाब एडवोकेट असलम मिर्ज़ा साहब। इसी के साथ आप तमाम हजरात का मैं बेनतिया मशकूर ममनून हूँ कि आप इतनी देर तक मौजूद रहे महफिल में, सब्र और तहम्मुल के साथ सुनते रहे। मैं अली जनाब इफ्तिखार अफजल साहब, अली जनाब अब्दुर्रहीम अरमान साहब, यूसुफ दीवान साहब, उस्ताद मोहतरम नूरुल हसनैन साहब, अजीम राही साहब, नाम बनावा आप तमाम का, डॉक्टर कीर्ति मैडम का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस महफिल में आखिर तक शरीक रहे। और इसी के साथ इस महफिल के सदर मोहतरम की इजाज़त से खत्म का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये हो गया इसके
अरे